ناظرین جنید سلیم حاضر ہے حسب حال اسپیشل، بلکہ حسب حال بہت ہی اسپیشل لے کے۔ ناظرین ہم نے یہ پروگرام کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ کو پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہوگا۔ ناظرین یہ پا جنید نے اسپیشل پروگرام میں کیا کیا ہے یہ رائے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ معاف کرے۔ ناظرین ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میرے امتحان نہیں ختم ہو رہے، یہ پائی روز مجھے ٹینشن دیتا ہے، دو موئی بندے بٹھا کے تو بتا نہیں رہا کہ یہ کون صاحبان ہیں، اور میں ان سے اس وقت کا ڈر رہا ہوں، پتہ نہیں کٹنے والے بندے ہیں، ہوتا ہے نا کہ پکڑنے کے دم اٹھ کے ڈھم ڈھم مجھے مارنے شروع کر دیں۔ بتاؤ تو صحیح یار کون ہے وہ؟ ٹی وی نہیں دیکھتے؟ دیکھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، مارننگ شوز نہیں دیکھتے؟ ہاں میرا خیال ہے کہ اگر تم مارننگ شوز دیکھتے ہو تو پھر تو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی محترم جناب ایم اے خان نوری صاحب کے تعارف کی ضرورت ہے، اور نہ ہی محترم جناب پیر سیف الرحمان صاحب جو لاہور سے۔ بالکل جناب، اب آپ نے پہچان لیا ہوگا جناب، ہر روز سویرے سویرے کسی نہ کسی جن کو لمیاں پایا ہوتا ہے جناب مختلف۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا اور روحانیت اس حوالے سے پاکستان میں محترم جناب ایم اے نوری خان صاحب جو ہیں وہ اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں، اور لائیو شوز میں انہوں نے باقاعدہ روحانیت کے ایسے کرشمے دکھائے ہیں جن پر جن آ جاتا، عام طور پہ ہم کہتے ہیں جن آ گیا، جن چمٹ گیا، جن چمٹ گیا، یہ شلتر نہیں نکلتی وہ جن نکال لیتے ہیں اور لائیو نکالتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ جن حاضر کرنے کا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں ایسی باتیں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ نوری صاحب نے جنوں کو لائیو ٹی وی شوز میں جن حاضر بھی کیے ہیں۔ اور ہم میرا خیال ہے کہ گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سیف الرحمان صاحب سے کریں گے کہ اس کے مذہبی اور شرعی پہلو پر تھوڑا سا ہمیں بریف کر دیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے پیر صاحب کہ یہ جن جو ہیں یہ ایسے باتیں بنی ہوئی ہیں، جن حاضر نہیں ہوتا، کسی کے اندر حلول نہیں کر جاتا، اور یہ جن چمٹ گیا، یہ ایسے عاملوں نے اپنی باتیں بنائی ہوئی ہیں، کیا یہ درست بات ہے جی؟ یار چمٹتا ہے جن، چنگم چمٹ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتی، تو جن تو بڑا تگڑا ہوتا ہے۔ سوری سر میں معافی چاہتا ہوں۔ کتب کے اندر جو لکھا ہوا تو آدم علیہ السلام سے تقریباً 1.25 لاکھ سال پہلے یہ ان کی پیدائش ہوئی، تو پھر اس کے بعد اگر ان کی سرکشیاں بہت زیادہ بڑھ گئی، 36 لاکھ سال کا ایک عرصہ تھا وہ گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا یہ بہت زیادہ آپس میں مارتے پیٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کفر پر تل گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا پر ایک عذاب نازل کیا جس سے یہ سرکش جن تھے وہ قتل ہو گئے۔ پھر یہ اللہ نے ایک نیا خلیفہ بنایا اور ایک نئی شریعت دی، پھر یہ آگے چلتے رہے، تو پھر 36 لاکھ سال کا عرصہ گزرا، تو پھر ان کی وہی سرکشیاں، پھر اسی طرح یہ چلنے شروع ہو گئے، تو اللہ نے پھر ان پر پہلے آسمان سے ایک آدمی کو، ایک بندے کو بھیجا، بندہ اسے کہتے ہیں جو عبادت کرتا ہو، انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے، بندے کو بھیجا جس کا نام تھا عزازیل۔ حدیث یا اس سارے واقعات کا ماخذ کیا ہے؟ اس کا یہی ہے کہ جنات کا ایک وجود کیا ہے، عزازیل جو ہے اسے نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ جو فرما رہے ہیں قرآن کے اندر 32 دفعہ جنات کا ذکر، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ فرما دیں کہ ان واقعات کا جو ماخذ ہے وہ کیا ہے؟ ہاں وہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ابلیس سے واقف نہیں ہیں کہ ابلیس کیا چیز ہے۔ عزازیل کا اصل، عزازیل کسے کہتے ہیں؟ ابلیس کو عزازیل کہتے ہیں۔ ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا، یہ اللہ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، پھر اس کے بعد یہ زمین پر آیا، اس نے سارے جنات کو قتل کرنا شروع کیا، اللہ کے حکم سے قتل کیا، پھر اس کے بعد یہ اس کے اندر ایک آکڑ سی آ گئی، اس نے کہا کہ میں نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے۔ اچھا نور صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جی۔ نور صاحب آپ فرمائیے کہ آپ ماشاءاللہ یعنی پریکٹیکلی آپ عملی طور پہ ایک حوالے سے اس میدان میں موجود ہیں، اور بہت سے لوگوں کو آپ کی وجہ سے راحت کے سانس بھی ملے، ریلیف ملا، اور اس مشکل سے بھی چھٹکارا ملا۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ آپ کے پاس زیادہ تر جو مریض آتے ہیں، مریض جو جن پر جنوں کا اثر ہوتا ہے، وہ کس حالت میں آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ ان کو عام طور پر یعنی ایٹ فرسٹ سائٹ کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہمارے ہاں میرے تجربے میں جو بات آئی ہے جنید صاحب وہ یہ ہے کہ جنات کا عمل دخل بہت کم ہے، ڈرامہ بہت زیادہ ہے۔
अच्छा, नूरी साहब ये बताइए कि ये जो जिन ये बात ही बनी हुई है या वाकई जिन जब आता है तो सबसे पहले हाउ करता है? नहीं, जिन ऐसा नहीं करता। अच्छा, जिन तो चूंकि ये हम नजर नहीं आपस में आता। हमें ड्रामा बढ़ा के एक दूसरे को जिन डराते हैं, मगर शक्लें ये बदलते हैं। शक्लें बदलते हैं। कभी राणा सनाउल्ला बन जाते हैं, कभी अपना राजा परवेज अशरफ बन जाते हैं, कभी शाह महमूद इसकी कुरैशी तान बन अमीर जाते मुकाम साहब पे टूटेगी। हैं। ये मुख्तलिफ गेटअप कर लेते हैं, होते हैं जिन ऐसे, फीका भी बन जाते हैं ये। जी जी। गैलस भी लगाते हैं। नाज़रीन, ये तो थे हमारे आमिल साहिबान के वो ख्यालात जो आप बारहा मुख्तलिफ चैनल्स पर सुन चुके हैं, लेकिन अगले सेगमेंट में हम अपने इन आमिल साहिबान के सामने चंद ऐसे मरीज भी पेश करेंगे जो जिन्नों से मुतासरा हैं। लेकिन नाज़रीन, एक बार फिर दरख्वास्त करूंगा कि हकीकत जानने के लिए प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ ज़रूर रहिएगा। इनका कुछ कीजिए। नायरीन, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हमारे हस्बे हाल में नूरी साहब तशरीफ लाए हुए हैं जो जिन्नों के हेड मास्टर हैं। बहुत कुटते हैं ये जिन्नों को, और पीर साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं माशाल्लाह, जिन्नों के बारे में हमें बतला रहे हैं। जब ये इधर आ रहे थे तो हमारे साथ कुछ दोस्तों ने राब्ता किया कि हमें पीर साहब के साथ मिला दें, हमारे पास पेशेंट हैं ऐसे जो जिन के काबू आ गए हुए हैं। तो वो पेशेंट भी, ये जो पीछे बैठे हुए हैं, ये वो पेशेंट हैं, कहीं समझे कि ये जिन शक्लें बदल के बैठे हुए हैं। तो या इनमें ट्रेन से का इंतजार कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के। ये ऐसे ये झुकते कर रहे हैं, देखो देखो देखो, इस तरह के काम नहीं करते, जिन भी आ जाते हैं। कई जिन जुगत का बुरा भी मनाते हैं। उसने फिर तुम्हें चमोटा मारा ना, तुम्हें समझ आ जाएगी। मुझे जिन कुछ नहीं कहेगा। 4 अल्लाह साल हो माफ गए, करे, या अल्लाह 4 मुझे साल माफ। हो गए भाई, 4 साल हो गए। ये पहली मर्तबा सुन रहा हूँ कि जिनके पास चमोटा भी होता है। हाँ, वो होता है किसी इसके वक्त। जिन के पास होता आप है। तो माफी दे दें मुझे, मैं इससे मुतकाल। हम बारी बारी पहले एक मरीज को बुलाएंगे, वो नूरी साहब फिर को अपनी वो तकलीफ बताएगा और उसके बाद ये उसका इलाज मुआवजा करेंगे। तशरीफ लाएं जी, जो आप में से जिसने आना, इधर आ जी शाबाश। अच्छा, ये बच्ची आ रही है, आजो बेटे बैठो। बैठे बैठे। सिट हेयर, इसका मतलब है इधर बैठे। इंग्लिश जो मैंने बोली। जी बताएं पीर साहब को, क्या आपको अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सायरा है जी। नूरी साहब, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं, सारे एक मिनट रुकिएगा, आपकी वालदा का नाम क्या है? मेरी वालदा का नाम जमीला। जमीला। अब आप बताइए कि आप ये समझती हैं कि आप विक्टिम हैं किसी पोजेस की, किसी जिन की, किसी रेड आई की? जी, मेरे साथ एक ऐसी ताकत है जिसको मैं महसूस करती हूँ, और पिछले 3 महीने से मेरे साथ साथ एक चीज़ है, मैं अपने सारे काम छोड़ के, सिर्फ मुझे समझ नहीं आती, खाते पीते चलते हुए काम करते हुए, इस वक्त प्रोग्राम में भी बैठी हूँ तो ये देखें मुझे फील हो रहा है जैसे मेरे साथ कोई चीज़ बैठी हुई है, यहाँ पे मेरे साथ है कोई, और मेरा ध्यान जो है ना जी बस उसी एक जो मेरे साथ एक ताकत है या एक कोई अनजानी सी शख्सियत है जो मेरे साथ है। कोई जॉब करती हैं? जी। जब ऑफिस जाती हैं घर से निकल के, तब भी ये चीज़ साथ होती है, जी, साथ बिल्कुल। चलती है, सिर्फ घर में ही नज़र आती है? मैं 2 महीने हो गए हैं, मैंने स्कूल में एक टीचिंग की जॉब करती थी, मैंने वो इसी वजह से नौकरी छोड़ दी है क्योंकि मेरा जो सारा तवज्जो है ना जी वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने मेरे काम से हट गई थी, और मैं बिल्कुल दिमागी तौर पे जो है ना मैं बिल्कुल अपने आप को पागल तस्वर करने लग गई हूँ। किसी को चेक करवाया इससे पहले? नहीं जी, मैंने तो किसी को ये बात बताई भी नहीं है, लेकिन आपके प्रोग्राम देखा था तो मुझे एक तजस्सुस था आपसे मुलाकात करने का कि मैं किसी तरीके से आपसे मेरी मुलाकात हो सके तो मैं शेयर करूँ ये अपनी बस प्रॉब्लम। ख़राबी यहीं से शुरू होती है जो आपने अभी फरमाया कि किसी से मुतासर हो गए, चाहे वो किसी गली मोहल्ले में बैठा हुआ है, उस पर ईमान लाए कि वो मुझे ठीक कर देगा। मेरे जेन में कोई जुगत आती भी है तो मैं डरता हुआ नहीं कर रहा। नहीं, आप कर दे, जिन नहीं है, नहीं मैंने नहीं इन पर जिन नहीं है। अच्छा जी। नहीं है। बेटे कौन है तुम्हारे साथ होता है? जुतियां तार के उसको कभी टोट पहने तार क्यों नहीं बेटा, खबरदार मेरे मगर लगा देना। ये जो हमारे दूसरे दोस्त मेरे साथ बैठे हुए हैं राशिद साहब, ये फैसलाबाद से तशरीफ लाए हैं और इनको भी ये शक है, बल्कि ये कहते हैं कि मेरे हवाई चीजें मेरा पीछा करती हैं, जिन्नात मेरे सामने इनको आती हैं। शक है, ये तो जब आए थे तो इनकी हालत बड़ी सीरियस लग रही थी। अल्लाह पाक खैर करे। ये नूरी साहब को बताएं आप क्या मसला है आपका? नूरी साहब, मेरे साथ जो है चीज़ें जो हैं मुझे वो नज़र आती हैं,
मेरा जिस्म जो है एकदम वो कांपना शुरू कर देता है, और कोई इस तरह है जैसे कोई चीज़ मुझे अंदर से निकाल रही है और चीज़ें मुझे सामने नज़र आती हैं। और ये तकरीबन कोई 7-8 माह से जो है मेरे साथ ये मसला जो है वो जारी है। उससे पहले नहीं था? उससे पहले नहीं था, बिल्कुल मैं ठीक ठाक था, कोई मुझे प्रॉब्लम जो है वो नहीं था। राशिद नाम बताया? जी राशिद। और वालदा का नाम? वालदा सुगरा बीबी। सुगरा बीबी। इन पर अगर कोई चीज़ है भी तो उसे जिन नहीं कहा जा सकता, कैफियत इन पर आ जाएगी, और जो कैफियत इन पर आएगी लोग यही समझेंगे कि वो जिन है, लेकिन वो जिन नहीं है। मुझे ये नज़र आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। जी आप काम कीजिए। मैं इधर आ जाऊं जी? बहुत शुक्रिया, मैं डर रहा था उधर बैठा हुआ। इनका कुछ कीजिए। पानी पिलाइए इनको, या पानी गिलास पे पानी लाएं, पानी दम कर दीजिए, पानी पे दम कर दें। कि बेटा पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। बस ठीक हो गए हो तुम, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। ठीक हो गए, ठीक हो गए, उठ जाओ। कुछ नहीं हुआ, उठ जाओ, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। नायरीन, ये जो पीछे बच्ची बैठी हुई है सिदरा, आप देख रहे हैं, इसको भी बेचारी को इसी तरह की कोई तकलीफ है, जिन्नाती कोई मामला है इसका, इसको भी नूरी साहब के सामने पेश करते हैं। इधर आओ बेटे सिदरा। सिट डाउन हियर। व्हाट्स प्रॉब्लम, बताओ मेरा बेटा। मुझे बहुत ज़्यादा नाइटमेयर्स आते हैं, ऐसी ख्वाबों में आग नज़र आती है बहुत ज़्यादा। क्या नज़र आती है? आग। और ख्वाब आते हैं बहुत बुरे, चीखती बहुत हूँ, सोते में बहुत ज़्यादा चीखती हूँ, बुखार चढ़ जाएगा, तबीयत ख़राब रहेगी, ठंडे पसीने आएंगे। दिखाया है, डॉक्टर्स को भी दिखाया है, बट आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई वैसे साइकोलॉजिकल इशू है, बट वो जो आग और ड्रैगन्स, एक जादू इसे कहा जाता है कि बच्ची पर जादू के जो इसने अलामात बताई हैं उसके पेश नज़र कि इसे जादू की कुछ हैं अलामात, तो वो जाहिर हो रही हैं। मतलब तो मुझ पर जादू किया उसे जिन्नात नहीं कहा उसे जा जिन्नात सकता, नहीं कहा जा सकता, जादू की अलामात हैं। आप फरमा रहे हैं कि किसी ने इस पे जादू किया? नहीं, ये ज़रूरी बात नहीं है कि किसी ने किया, जादू हो जाता है। इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, शैतान जादू करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान ने जादू किया हो, शैतान करते हैं, जिन भी करते हैं जादू। तो उसको मुझसे क्या चाहिए होगा जो मुझ पर जादू करेगा? तो थोड़ा चाहिए होगा कि अल्लाह ने एक मखलूक को पैदा किया हुआ था, जिन को, जो अल्लाह की इबादत करती थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला ने हमें पैदा कर दिया। तो जिन्नात को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा जलसीपन है कि हम अल्लाह की इबादत करते थे, अल्लाह ने इनको क्यों पैदा कर दिया। इसलिए तो इबलीस ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया था। मैंने आपको बोला ना, मुझे आग बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है, मुझे ख्वाब बहुत डरावने और खौफनाक आते हैं। उसमें अब मैं आपको पूरे डिटेल में तो सारे ख्वाब नहीं बता सकती। हाँ, कोई एक ख्वाब बता दीजिए, कोई एक ख्वाब बता मैं दीजिए, अर्ज कर दूं, एक ख्वाब बता दीजिए, उसकी बात बोलिए। मैंने एक, आपको ने देखी होगी एक काली देवी जो हिंदुओं की है, मैंने उसको बहुत ज़्यादा अपने ख्वाबों में देखा है। एक मंदिर में हूँ, वहाँ पर वो एक काली देवी वो मेरी तरफ आ रही है तलवार लेकर, वो जो भी एक उनकी तलवार और जो ढेर सारे उसके हाथ होते हैं, उसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खौफ आता है। वो चीखती भी बहुत ज़्यादा हूँ, फिर बुखार चढ़ जाता है जब सुबह उठती हूँ। आंखें बंद कीजिए, देखिए यहाँ कहीं नजर आती है आपको? मैंने आपको बोला मुझे ख्वाब में नज़र आती है। मैंने आंखें इसीलिए बंद करी थी, आप ख्वाब आंखें बंद करके देखती हैं। नाज़रीन, ये सब कुछ जो आपके सामने अभी हो रहा था, ये क्या था, ये मरीज कौन थे, ये हकीकत, बल्कि अफसोसनाक हकीकत जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। लेनी है मुझे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक।
नायरीन, नूरी साहब तशरीफ ले गए हैं। अब आपको ये शोज में जो जिन निकलते हैं ना हर दूजे तीजे दिन हर चैनल पे, उसकी असली स्टोरी बताते हैं। नाज़रीन, ये तीनों अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तंदुरुस्त, सेहतमंद, दिमागी, जिस्मानी हर लिहाज से तंदुरुस्त हैं। कोई इन पर जिन का साया नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ये मरीज़ नहीं है। ये नूरी साहब की फरमाइश थी कि आप आज के शो के लिए कोई तीन या चार ऐसे लोग लेके आए, ऐसे नौजवान लेके आए जिनको मैं बाकायदा डायरेक्शन दूं और वो फिर मेरी डायरेक्शन के मुताबिक अमल करें कि उनके ऊपर जिन आ चुका है और वो किसी ताकत के असर में आ चुके हैं। तो हमने अपनी मुश्किल यूं आसान की कि हमने अपने ही चैनल में काम करने वाले ये तीनों होनहार रिपोर्टर्स का इंतखाब किया, इनसे दरख्वास्त की कि वो मरीज बन के नूरी साहब के सामने तशरीफ लाएं। फिर नूरी साहब ने बाकायदा बैठकर 1-1.5 घंटा लगाकर इनको बाकायदा अदाकारी सिखाई, इनको बताया कि आपने ये करना है, मैंने यूं किया तो आपने उसके जवाब में ये करना है। इसकी तफसील थोड़ी सी इनसे खुद पूछ लेते हैं। नायरीन के तीनों रिपोर्टर हैं हमारे, ये तो अब बड़े हो गए हुए, ये ना छोटी छोटी किसी की कुकड़ी चुकी जाए या किसी का आराम से बैठो, बड़ी होनहार रिपोर्टर है। डराया मुझे, गुस्सा चढ़ा हुआ। ये जोड़ो राशिद, ये राशिद बने हुए थे, इनका असल नाम शाहिद चौधरी है। यार मुझे पता है रिपोर्टर हैं शाहिद चौधरी साहब, अच्छा। और एक्टिंग ऐसे कर रहे थे ईमान से, मैं मुझसे मेरा हौसला होता ना तो मैंने पकड़ लेना था। डरा ही नहीं यार मुझे, और शर्टें अपनी फाड़ रहे थे। शर्ट कैसे फाड़ी थी, मैं डर गया था। सर ये तो मुझे जैसे उन्होंने डायरेक्शन दी थी ना सुबह के, आपने ऐसे करके शर्ट फाड़नी है, नीचे गिर के यूं कांपना शुरू कर देना है, मैं आपको आके पानी फेंकूंगा तो आपने फिर ऐसे उठना है, मेरी तरफ देखना है और आवाजें जो हैं अजीब अजीब निकालनी है, तो मैं आपके जिन निकालूंगा लाइव जो है। तो मुझे कान में कह रहा था जब वो चला गया, कहता मैं तो उसको टक्कर भी मार दिया। हमारे पास वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मसूफ इनको हिदायत फरमा रहे हैं, बिल्कुल एक ड्रामा डायरेक्टर की तरह। सुननी वाह सुनाओ यार, सुनाओ। ये सुने जरा। नहीं इसको लाके बिठाएंगे। अच्छा। जब मैं पढ़ के दम करूंगा ना। अच्छा फिर डायरेक्ट ये इंसान के रूप में आएगा। जब मैं इसके माथे पे हाथ रखूंगा, हाजिरी हमेशा माथे पे हाथ रखने के बाद होगी जिस पे भी होगी, ठीक है, वो हमारा क्यू है। हमारे प्ले का इसका वो क्यू है कि माथे पे हाथ रखा, 2-4 मिनट या सेकंड या जितना भी आप टाइम लेना चाहते हैं उतना टाइम लेकर तो आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब मैं पीछे हटूंगा कि बहुत पुरशदुद जिन है, आप अपने आप को मारे और मारते मारते चीखते चीखते अपनी खमीज उठा के फाड़ के लीरो लीर करके फेंक दें। और उसके बाद फिर मैं आपके ऊपर पानी छिड़कूं तो चीखे मारते मारते गिर जाए, आराम से खड़े होकर गिर जाए। हकीकत जानने के लिए प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ जरूर रहिएगा। इससे तो हमने जलाना है, इससे तो हमने जान छुड़ा, इससे तो हमने जान छुड़ा लेना है, इस दिन को तो हमने जला देना। और ये जो सायरा बनी हुई थी, असल नाम जिनका गुनीला है, ये देखो ना, इन कह रही है कि मुझे तो ऐसे उसने पूरी डायरेक्शन दे के समझाया है कि ये करना है तुमने, और फिर मैं ये करूंगा, और फिर मैं पानी फेंकूंगा, और फिर जनाब जब वो गुनीला साहिबा को हिदायत जारी फरमा रहे हैं एक ड्रामा डायरेक्टर की तरह, तो वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद है और ये नेक काम नीचे हमारे ऑफिस में हो रहा था। और मैंने सुना है चूंकि ये भाई साहब खुद पहले जर्नलिस्ट रह चुके हैं, हमारे वो सीनियर जर्नलिस्ट राणा अजीम साहब उधर गए हैं ना, तो उनको उसने पहचान लिया। शक हो गया। राणा अजीम एडा पक्का एक्टर है, वो पागल बन गया उधर। हाय हाय अल्लाह माफ करे, अल्लाह राणा साहब की अक्ल कायम रखे, इतना अच्छा पागल बने। पागल बने पे जोर दो। अन्य वैसे उनका गुस्सा चढ़ जाए तो पागल हो भी जाते। सर वीडियो दिखाएं। अच्छा जी वीडियो देखिए, ये देखें जी। आपको बुलाया, तारुफ आदत है, पोस्ट हो गया, मैं नाम तो बताया। मेरा नाम सायरा। क्या हमारे पास सायरा है?
प्रॉब्लम ये है कि पहले तो ये रात को सोते हुए ख्वाब में डरती थी, अब इन्हें जो चीज ख्वाब में डराती थी, ये जहां भी जाती हैं इनके साथ साथ वो चीज मूव करती है, इन्हें लगता है कि इनके साथ साथ कोई चल रहा है, और अचानक इन्हें आवाज देता है, ये हड़बड़ा जाती हैं, नजर नहीं आता, ऐसा है कि कोई चीज साथ साथ चल रही है, तो वो साए की सूरत में है, हवा की सूरत में है, आवाज की सूरत में है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता आवाज भागता होना शुरू हो गई, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो चीज जो है वो जैसे इनके ऊपर सवार हो गई है, इनके सीने पर चढ़ गई है, इनके कंधों पर चढ़ गई है, और उसके बाद ये उससे छुटाने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए चीखें मारती हैं, ऐसा लगता है कि उतार के कोई चीज फेंक रही है अपने ऊपर से, लेकिन उतर नहीं है। और घर वाले जो है वो भी बड़े परेशान हैं कि इनको हुआ क्या, और वो बता नहीं पा रही है किसी को कुछ। जी। फिर मैं आपसे बात करूँ कि अच्छा आपके साथ ये होता है, सारा कुछ इस तरह से होता है, कितनी बार हुआ है, कितने अरसे से हुआ, आपके जो जहन में आए बोल दीजिए। मैं कहता हूँ कि आप कभी खुले बाल लेकर छत पर रात को गई हैं? कहते हाँ जी मैं गई थी, और हाँ मुझे याद आया, एक बार गई थी और उसी वक्त से मेरे कंधे भारी हुए थे, मेरी अम्मी आके कहा था, तो अम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी थी, कितनी मतलब मना कहा, सिवा से ये चीज बढ़ गई है। और इस वक्त भी मैं यहाँ आई हूँ तो ऑफिस, तो ये चीज जो है मुझे 4-6 जगह पे नजर आई। तो आप हिंदू जिन है या मुसलमान, पहले आप फैसला कीजिए। हिंदू। जो भी दे दे जो भी दे। मैं आपको थोड़ी सी लैंग्वेज भी बताऊंगा, आपने हिंदू लैंग्वेज बोलनी है, ड्रामे देखे हैं, तो वो हिंदू बोले, वो भी उतना ही वायलेंट होगा जितना उनका होगा, उससे भी ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, वो तो हिंदू है, उसे तो हमने जलाना है, इससे तो हमने जान छुड़ा, इससे तो हमने जान छुड़ा लेना है, इस जिन को तो हमने जला देना। आपका जो है आपका नाम जो है हिंदू जी साहब जो है, आपका नाम राजेश खन्ना है। यार तुम जरा इस छोटी डैन को देखो, उसने कहा कि तुमने सिर्फ हिंदू जिन राजेश कुमार का ये करना है, उसने अपने पल्ले से बीच में काली देवी भी डाल ली है। कितने तेज बच्चे हैं यार। क्योंकि ये कह रही थी मुझे याद नहीं आ रहा था कि हिंदुओं में कौन कौन सी देवियां हैं, तो एकदम काली देवी इनके जहन में ही उन्होंने उसी का नाम ले अच्छा लिया। वैसे मैं तुम्हें असल बात बताऊं, मैं भी एक बुजुर्ग आदमी ठहरा हूँ और जिन्नों का असर है कि ये आज हकीकत मान गया। नहीं, मैं तुम्हें सीरियस बताऊं, एक तो राना यीम साहब चूंकि मशहूर मरूफ सहाफी और डाडे भाई हैं, उनको देख के भी, और उसके बाद उसको मुझे एक बंदे ने नीचे बताया कि ये दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे कि ये हसबे हाल वाले इस तरह के प्रोग्राम करते नहीं, कोई चक्कर ही लगता है, वो इधर इसलिए लपेट गया, वो जीन शेर नहीं उसने फिर निकाला है। मैं कहता रहा जी नहीं ये है ये नफसियाती सा, नीचे जो डायरेक्शन दी थी ना उसने, उसके मुताबिक फिर ऊपर सीन नहीं करवाए उसे। they got wind of it, I think. बिल्कुल उनको शक पड़ गया। लेकिन यार तुम ये देखो कि इन लोगों ने, इन 4 या 5 लोगों ने 4 या 5 चैनल्स पे बैठ के किस तरह करोड़ों लोगों के दिलो दिमाग को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है कि लोग यूं स्टन होके इनको देखते हैं कि ये जिन निकाल रहे हैं, धुआं निकल रहा है, और कितने फख्र के साथ ये बैठ के अपने फ्रॉड हमें बता रहा है कि जनाब मैं तो एक माहौल बना देता हूँ और मैं तो यूं कर देता हूँ और वो कर देता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों के अकायद के साथ खेल रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अकीदा तो बाद में रह गया। वैसे तो पहले भी लोगों को इस हवाले से काफी इल्म है कि ये सारा फ्रॉड ही होता है, और आज ये तुमने शो चलाया है ना, ये सारा कुछ तुमने बड़ी मेहनत के साथ दिखाया है ना, लो आज के बाद फिर लोग ना इनको देखेंगे तो मुझे पकड़ के लेते। हमारा फर्ज था कि ये हमारे ईमान की कमजोरी हो, हमारा फर्ज था लोगों को, अपने व्यूअर्स को, जो हमें देखते हैं आगे से, जिनको वो बता सकते हैं, उनको आगाही देना। अगर आज के इस शो के बाद भी लोग इनकी बात सुनना नहीं छोड़ते, इनको अहमियत देना नहीं छोड़ते और इनकी बात गौर से सुनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहसियत कौम हमारे लिए ये शर्म का मकाम है यार। असल में पा जुनैद, लोग बेचारे कंफ्यूज हुए हैं। ये जो अपना डिफरेंस है ना असल और नकल का, ये नहीं वाजे हो रहा, क्योंकि जिन्नात का जिक्र कुरान शरीफ में तो है ही, अहादीस में भी है। इतना मुझे तुम पे गुस्सा है। अब बस करो यार। यार इन लोगों ने मुझे डराया, बड़ा ईमान से मैं डर गया।
बंदा पूछे तो तरफ के बड़ा शुरू हो गई। आज अपने चैनल पे अपने शो में ये हुआ है तो डर गया। जब दूसरे चैनल्स पर बैठ के जिन निकालते उस वक्त डर नहीं लगता? उस वक्त सच्ची मुझे समझते थे। नहीं पता। अच्छा, ये जिस तरफ तुमने इशारा किया है ना, असल में यही हमारी ज़ईफुल एतिकादी है। और ये लोग ये छोटी सी बात का सहारा लेके ये अपनी इनकी यानी करोड़ों रुपयों की आमदन का जरिया भी यही है। इसी तरह के जी जिन्नों के वजूद से इनकार तो कुफ्र है ना, जिन्नों का वजूद तो है। अब जिन्नों का इंसानी जिंदगियों में किस हद तक अमल दखल है, ये एक काबिल बहस बात है। इस पर बहस है, डिबेट हो सकती है। और इंशाअल्लाह ताला हमने ये प्लान किया है कि हम अगले 3 दिन हस्बे हाल स्पेशल पार्ट 1 आज था, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 4 दिन हम इसी मसले के मुख्तलिफ जाविये, मुख्तलिफ हवाले डिस्कस करेंगे। इसके मजहबी और शरई हवाले, इसके साइंसी और नफ्सियाती हवाले, बिल्कुल, ताकि वाज़ेह हो और हमें भी कुछ यानी क्लैरिटी मिले। अगर हमारे जहन में भी कोई कंफ्यूजन है तो वो भी दूर हो सके। तो इंशाअल्लाह हम अगले 4 दिन इसी मौजू को लेके चलेंगे और एक अच्छी नीयत के साथ, ताकि कम अज कम ये जो ज़ईफुल एतिकादी का ये जो जिन है, मैं तो ये कहता हूँ कि ये असल में कोई जिन नहीं है, ये असल में रेटिंग का जिन है। ये मीडिया ने जिस तरह ग्लोरीफाई किया है और लोग, ये रेटिंग का जिन है, ये असल जिन नहीं है। हाँ जी, इसीलिए तो देखो ना निके निके बच्चों को आग नजर आती है। आग नजर आती है। नाज़रीन, वक्फे के बाद हम आपको M.A. खान नूरी साहब की वो गुफ्तगू सुनवाएंगे जो हमने खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड की है और जिसमें वो बहुत फख्र के साथ मुख्तलिफ चैनल्स पर होने वाले प्रोग्राम्स में अपने कारनामे सुनाएंगे, बहुत फख्र के साथ। वो जरूर सुनिएगा, हमारे साथ रहिए। अच्छा हजूर वाला, ये जो नूरी साहब ने हमारे यहाँ आज आके ऑफ एंड ऑन कैमरा दोनों तरह की हरकत फरमाई हैं, वो तो आपने देख ली है। ये नीचे हमारे दफ्तर में जो हमने खुफिया कैमरे से इसकी सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की है, उसमें ये बहुत फख्र के साथ बता रहा है कि मैं दीगर चैनल्स पे जो प्रोग्राम किए हैं, जिसने बहुत हाई रेटिंग ली है, जिन प्रोग्राम्स ने, फख्र के साथ बता रहा है कि मैं जिस प्रोग्राम में बैठ जाता हूँ उसकी रेटिंग तो आसमान से लग जाती है। जरा सुनो यार इस शख्स की गुफ्तगू जो हमने रिकॉर्ड की है। और दोनों ही कलाबाजियां करें तो बताएं आप कितना बड़ा ब्लंडर। बाद में मीटिंग करके बड़ा ठीक ठाक चला था। अमिताभ बच्चन बनने के चक्कर में अपने आप को 2 मरतबा जलील किया है। अब मैंने हाजिरी की औरत पर, अच्छा हाजिर चीज हो गई। उसके बाद मैंने बात की, वो बोला जिन जो है वो बोला नहीं। अच्छा, बहुत कोशिश कर ली, ओके। लेकिन मेरा तरीका ये है कि भाई ये एतराज ना आ जाए उससे कि जी आप उस औरत की आत्मा रोगी, बिल्कुल नहीं, आपने इंसानी हकूक की तरजीह कुछ बोल पड़े। मेरे भी बहुत ढीठ जिन है, ये बोलेगा नहीं, लेकिन आया हुआ है और इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए। ये शो में नहीं हो सकता ये काम। अब ये क्या नहीं, हम बात में जाए, ये क्या लगता है मुझे इजाजत हो तो मैं ट्राई करूँ। अब ऑन एयर आप अगर ये बात कह रहे हैं तो कैसे मना करेगा कि नहीं करो भाई, ना करो। हाँ, ये मैं आपको ये बात, यही तो ब्लेंडर से, यही तो मैं आपको बात करूँ कि पीछे बैठे हम क्या करेंगे। तो हाँ ठीक है, अब जाके क्या कर रहे हैं, देख मेरे दोस्त हाजिर हो जा, इसमें तेरी भलाई है। एंड क्या किया इन्होंने, उसके इस तरह खड़ा करके कैमरे की तरफ बैठ करके उसकी उंगलियां मरोड़ दी, उसको घसीटना शुरू कर दिया उस औरत को। उसने मुझे घूर के देखा, औरत के सब तो सोशल मीडिया अगर चला जाएगी औरत की आत्मा मर रही है तो तू कहाँ जाएगी। ब्रेक ले, उसने ब्रेक ले ली। ये बाद में भी इसे पता ही नहीं चला कि ब्रेक हो गई, ये हाजिरी करने को लगा पड़ा ब्रेक ले ले, अमिताभ बच्चन बना हुआ बनने दे। अच्छा, इसमें ये बात आप भी रखिएगा, अगर कभी ऐसा हो जाए फौरन ब्रेक ले, सब कवर हो जाता है, फौरन ब्रेक। और उसके बाद उस बंदे को थप्पड़ मार के बाहर निकाले और बाद में प्लीज उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी ब्रेक के दरमियान कि हमने उसको डॉक्टर के पास भिजवा दिया। मौलवी तो यहाँ से हमेशा फारिग है, हर मौलवी फारिग।
जुनूनी खवातीन तो अपने घर को, शौहर को अपनी सास नंदों से दूर ले जाने के लिए भी अपने ऊपर जिन तारी कर लेती हैं, और जैसे ही वो घर अलग होता है उनको जिन निकल जाता है। हाय 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 यार, ये क्या तुमने दिखा दिया, ईमान से दिल ही बुझ गया। होय 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 होय। तुम ये देखो कि ये लोग तो चलो चैनलों के ऊपर बैठ के झूठ बोल रहे हैं, मीडिया के ऊपर झूठ बोला जा रहा है, लोग झूठ की तरफ कितना अट्रैक्ट कर रहे हैं, कितनी अट्रैक्शन है झूठ में पाई जाती लोगों के लिए, ये कितनी बड़ी बदनसीबी। तो और ज़ईफुल इत्कादी किसे कहते हैं? हाय हाय हाय। और कुरान शरीफ में वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि झूठे पर खुदा की लानत। बेशक। और तुम देखो ना कि मुल्क के अंदर जो नहुसत छाई हुई है, नहुसत छाई हुई है, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। वो किस लिए है? इसीलिए इसी वजह से कोई शोबा ऐसा बचा ही नहीं है, खास तौर पे मीडिया जिसे सिर्फ सच होना चाहिए। कोई राह रास्त पे इसी तरह कौमें पड़ती हैं कि उनको सच बताया जाए। जब उधर भी सारा झूठ ही चल रहा होगा और ज्यादातर लोग झूठ ही सारा दिखा रहे होंगे और फेक ड्रामे ही कर करके दिखाएंगे, तो फिर क्या उसका रिजल्ट निकले। लेकिन अजीज साहब, बदकिस्मती देखे ना कि लोग बाकायदा शौक से देखते हैं ऐसे हाँ हाँ हाँ। और इस तरह के फेक प्रोग्राम पकड़े भी गए हैं, लोगों के सामने भी आ गए हैं, सोशल मीडिया पे भी आया है। चैनलों ने, कईयों ने प्रोग्राम उस पे कर दिए कि आपने फेक प्रोग्राम किया, ये किया, वो किया, रो पेट के फिर माफिया भी मांगी गई, उसके बाद फिर भाईजान ये नूरी साहब उस जो खुफिया कैमरे से गुफ्तगू रिकॉर्ड की है हमने, उसमें बड़े फख्र के साथ ये कह रहे हैं कि मॉर्निंग शोज में जो घरों में बैठी खवातीन है उनका दिलो दिमाग मेरी मुट्ठी में होता है, मैं जिस तरह चाहता हूँ मोल्ड कर लेता हूँ। नहीं, ये तुमने ठीक फैसला किया कि इसको तफसील के साथ 3-4 शोज डिस्कस करना चाहिए, बड़ा अच्छा फैसला है तुम्हारा। नाज़रीन, ये था आज का अस्बे हाल। कल भी इसी मौजू के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए बात जारी रखेंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।